Dear students, let us study today occurrence and principles of extraction of iron. Iron is the second most abundant metal in the earth crust and fourth most abundant element in the earth crust. अगर हमने एलिमेंट्स के हिसाब से देखना इट इज द फोर्थ वन, अगर मेटल्स के हिसाब से देखना इट इज द सेकंड वन. Its abundance is 5.1%. Occurrence. It does not occur in free state. The important ores of iron are hematite, red oxide of iron Fe2O3 formula, iron pyrites FeS2, limonite, hydrated oxide of iron Fe2O3 3 times water. हेमेटाइट और लिमोनाइट में वाटर ऑफ हाइड्रेशन का ही फर्क है. मैग्नेटाइट Fe3O4, साइड्राइट FeCO3. In India, ores are located in West Bengal, Orissa, Bihar, and Karnataka. Now, before going into the details of extraction of iron, let us have a look on forms of iron. Iron की कुछ forms को हम देख लेते हैं बच्चे. Have a look on the different forms of iron. Forms of iron. First, we have pig iron. It is the most important form of commercial iron. It contains 3 to 5% carbon, along with small amounts of manganese, silicon, sulfur, and phosphorus. These impurities make iron hard and brittle, and hence it cannot be molded by hammering. हथौड़े से हम इसको मोल्ड नहीं कर सकते. Hard and brittle. इसमें कार्बन का कंटेंट 3 to 5% है. In addition, it has small amount of impurities. Wrought iron. It is the purest form of commercial iron. It contains 0.2 to 0.5% carbon, beside traces of phosphorus and silicon in the form of slag. It is ductile, soft, malleable. It can be molded into different shapes. The presence of slag in it makes it tough and resistant towards rusting and corrosion. It is used to make chains, anchors, bolts, nails, railway carriages, couplings, etc. Purest form of iron with small amount of impurities, phosphorus, silicon in the form of slag, which in fact improve its resistance towards rusting. In addition, it contains 0.2 to 0.5% carbon. Next is steel. It contains 0.1 to 1.5% carbon. Besides carbon, it contains other metals such as manganese, chromium, nickel, etc. As carbon content decreases, the ductility decreases, but tensile strength increases. Tensile strength क्या होता है? Stretching without breaking. Stretching without breaking. A variety of alloy steels can be produced with different metals: stainless steel, nickel steel, manganese steel, Al-nickel steel, aluminium nickel, cobalt steel, and so on. Well, let us move towards extraction of iron, cast iron. Iron is usually extracted from hematite ore, Fe2O3, hematite ore. First step is concentration of the ore. The ore is crushed into small pieces with the help of big jaw crushers, and washed repeatedly with water to remove impurities of clay and sand. पहला स्टेप हो गया कंसंट्रेशन. दूसरा स्टेप है बच्चे कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन आपको पता है, कैल्सिनेशन का मतलब क्या होता है? हीटिंग द ओर in the absence or limited supply of air. So concentrated ore is then calcined in the reverberatory furnace. During process, following changes take place. Moisture get removed. Impurities of phosphorus and arsenic escape out as volatile oxide. सल्फर बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देगा, आर्सेनिक ऑक्साइड बना देगा, AS2O3 या AS2O5. फास्फोरस आर्सेनिक एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं. फेरस ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक ऑक्साइड. अगर इसमें थोड़ा बहुत कहीं फेरस ऑक्साइड है, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड. द एंटायर मास बिकम्स पोरस
एंड बिकम सूटेबल फॉर रिडक्शन। पोरस कैसे बच्चे, जब गैसेस बबल आउट होंगी इसमें से तो पोर्स तो बनेंगे। ये गैसेस, मॉइस्चर मूव होगा तब भी पोर्स बनेंगे। तो इसमें मॉइस्चर मूव हो जाएगा, इंप्योरिटीज ऑफ सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होके एज वोलाटाइल ऑक्साइड भाग जाएंगी, और फेरस ऑक्साइड इफ एनी प्रेजेंट गेट कन्वर्टेड टू फेरिक ऑक्साइड एंड द मास बिकम हाईली पोरस एंड इज सूटेबल फॉर रिडक्शन। क्योंकि पोरस होने से सरफेस एरिया बढ़ता है, मोर द सरफेस एरिया मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बच्चे आपको पता है कि हमने अब फेरिक ऑक्साइड जो है हमारी ओर जो है उसको रिड्यूस करना विद कार्बन ओक। द कैल्सिनेटेड ओर इज देन रिड्यूस्ड विद कार्बन दैट इज स्मेल्टेड इन ए ब्लास्ट फर्नेस। द ब्लास्ट फर्नेस इज टॉल सिलेंड्रिकल, ये सामने डायग्राम इसकी है, फर्नेस मेड अप ऑफ स्टील एंड लाइन इनसाइड विद फायर ब्रिक्स। ये इसके अंदर फायर ब्रिक्स लगाई हुई हैं टू सेव द स्टील आउटर कंटेनर। बाहर ये स्टील का बना, अंदर फायर ब्रिक्स, अदरवाइज क्या होगा आपकी स्टील हीट से डिके कर जाएगी। तो स्टील को बचाने के लिए, कंटेनर को बचाने के लिए इसके अंदर फायर ब्रिक्स लगाई होती है which can withstand high temperature. At the top of furnace there is a cup and cone arrangement. ये कप एंड कोन, ये देखें बच्चे, ये कप एंड कोन अरेंजमेंट। इसमें आप गौर से देखें बच्चे, यहाँ कप एंड कोन अरेंजमेंट जो लगा है इसमें स्टॉपर भी लगे हैं दो, ये स्टॉपर है, ये देखें चेन के साथ जुड़े हुए हैं दोनों स्टॉपर। ये इस ओपनिंग को बंद कर रहे हैं, यहां से हमने चार्ज फेंकना है, जो हमारी ओर है उसको यहां से फेंकना है। एट द टॉप फर्नेस प्रोवाइड कप एंड कोन अरेंजमेंट व्हिच हेल्प्स टू फीड द चार्ज। एट द बेस वी हैव टायर्स, टायर्स क्या होते हैं बच्चे, होल्स टू इंट्रोड्यूस ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, दीज आर टायर्स। हॉट एयर ब्लास्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने बेस पे टायर्स रखे होते हैं, होल्स रखे होते हैं। टैपिंग होल फॉर विथड्रॉइंग मॉल्टन आयरन, ये टैपिंग होल है मॉल्टन आयरन को विथड्रॉ करने के लिए। मॉल्टन आयरन यहाँ इकट्ठा होगा। चार्ज, दैट इज चार्ज क्या है यहाँ पे, कैल्सिनेटेड ओर, जो ऊपर हमें फेरिक ऑक्साइड मिला, दिस वन कैल्सिनेटेड ओर 8 पार्ट्स, कोक कार्बन 4 पार्ट्स एंड लाइमस्टोन 1 पार्ट, कैल्शियम कार्बोनेट is introduced from top through cup and cone arrangement. At the same time, blast of hot air at 873 Kelvin is blown into furnace through toyers. Toyers के थ्रू हमने blast of hot air इंट्रोड्यूस करना, और टॉप से क्या इंट्रोड्यूस किया बच्चे हमने, चार्ज। चार्ज क्या है, तीन कंपोनेंट्स है उसके, कैल्सिनेटेड ओर दैट इज फेरिक ऑक्साइड, ओक 4 पार्ट्स एंड लाइमस्टोन। जैसे हम चार्ज को ऊपर से इंट्रोड्यूस करेंगे, कप एंड कोन अरेंजमेंट, पहले यहां से यहां गिरेगा, है ना, स्टेप वाइज, फिर यहां से नीचे आएगा आहिस्ता आहिस्ता से, कोन रखा हुआ है तभी एकदम से ड्रम से नीचे ना गिरे, ठीक है। एट द सेम टाइम ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर एट 873 केल्विन इज ब्लोन इनटू फर्नेस थ्रू टॉयर्स। यहां से हम ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इंट्रोड्यूस करेंगे। द कोक सर्व्स एज बोथ फ्यूल एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कोक यहाँ पे दो काम करेगा, टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा बच्चे, फ्यूल का काम करेगा, और साथ साथ में बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। फिर लाइम सर्व्स एज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, जो इंप्योरिटीज को रिमूव करता है इन फॉर्म ऑफ इनफ्यूजिबल slag. The following reactions occur in blast furnace. At the base, coke burns to produce carbon. यहाँ बेस पे बच्चे कोक बर्न करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि यहाँ कोक बर्न किया बेस पे, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो हॉट एयर यहाँ से पास करें, यहाँ ये बर्न करेगा, तो जोन ऑफ कंबस्शन जिसको हम कहेंगे, यहाँ पे एकदम से टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप टू 1800 केल्विन। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, heat produced raises the temperature to about 1775 Kelvin. This region is called zone of combustion. ये वाला रीजन जोन ऑफ कंबस्शन, इस रीजन को हम क्या कहेंगे बच्चे, जोन ऑफ कंबस्शन। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड देखिए बढ़ रही है और हीट निकल रही है बहुत ज्यादा। एज कार्बन डाइऑक्साइड राइजेस अपवर्ड, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे ऊपर को राइज करेगी, इट कम्स इन कांटेक्ट विद मोर ऑफ कोक, मोर ऑफ जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, मोर ऑफ कोक, इट कम्स इन कांटेक्ट विद मोर ऑफ कोक, तो ये उससे रिएक्ट कर जाएगी कोक से। ये बच्चे देखें, मोर ऑफ कोक, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर को जा रही है,
जोन ऑफ कंबशन, ये हमारा जोन ऑफ कंबशन है। यहाँ पे कार्बन बर्न किया और जो कार्बन से ऊपर को जा रही है, ऊपर से क्या गिर रहा है, कोक। फ्रॉम टॉप व्हाट इज फॉलिंग, कोक। तो वो कोक से कंबाइन करके क्या बनाएगी बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो टेम्परेचर फॉल्स टू 1475 केल्विन टू 1575 केल्विन। दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। इसको हम कहेंगे बच्चे जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ये देखिए। तो जब ये ऊपर से कोक आ रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से ऊपर को जा रही है, तो ये कंबाइन करेगी, बनाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो टेम्परेचर फॉल करेगा एंड हेंस वी कॉल इट, थोड़ा सा इसके ऊपर, इसी के ऊपर थोड़ा सा, वी कॉल इट जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बच्चे आ गया जोन ऑफ रिडक्शन। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ फर्नेस, अपर पार्ट, ऊपर वाला हिस्सा फर्नेस। हियर टेम्परेचर इज बिटवीन 500 टू 9, क्योंकि और सिलेंड्रिकल फर्नेस है तो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो इसमें जो टेम्परेचर होता है इस रेंज में होता है। हियर द ओर्स आर रिड्यूस्ड टू आयरन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में बनी, वो इस जोन में फेरिक ऑक्साइड को बच्चे क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऊपर को राइज करेगी, है ना। ऊपर जाके, ऊपर से क्या फॉल कर रहा है, चार्ज, ऊपर जाके ये Fe2O3 को रिड्यूस कर देगी, फर्स्ट इनटू Fe3O4 एंड देन इनटू आयरन। Fe3O मतलब कुछ हिस्सा फेरस का होगा इसमें, कुछ इसका फेरिक का होगा। Fe3O फर्स्ट इनटू Fe3 मतलब फेरिक से फेरस बना और फिर आयरन बना, ठीक है ना। तो Fe2O3 CO FeO, यही मैंने कहा ना, इसमें बना कुछ हिस्सा, तो ये बच्चे इसको रिड्यूस कर देगी, ठीक है। इन द मिडिल पार्ट ऑफ फर्नेस, फर्नेस की मिडिल पार्ट में वेयर टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 900 टू 1500 केल्विन, द रिडक्शन ऑफ फेरस, कुछ फेरस ऑक्साइड जो बनेगा यहाँ पे, ये दिखाया हुआ है, तो फेरस ऑक्साइड यहाँ पे बनेगा, पार्ट ऑफ फेरस ऑक्साइड ना, कुछ तो रिड्यूस हो गया किसमें, Fe2O3 into Fe3O4, Fe3O4 into iron, but some part may be reduced to only FeO, कुछ ही सब बच जाए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तेजी से ऊपर को जा रही है, चार्ज तेजी से नीचे को गिर रहा है, एयर में कांटेक्ट है, कुछ हिस्सा बच सकता है, वो नीचे आके कोक से रिएक्ट कर जाएगा। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ फर्नेस में टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 900 टू 1500 केल्विन, द रिडक्शन ऑफ फेरस ऑक्साइड फॉर्म्ड अबव अकर्स टू आयरन बाय कार्बन एट a temperature of 1073 केल्विन। Fe2O3 हमारा है, वो बच्चे यहाँ रिड्यूस हो जाएगा। फर्दर पार्ट ऑफ द ओर लेफ्ट अनरिड्यूस्ड इन अपर पार्ट ऑफ फर्नेस आल्सो occurs in middle part above 1073 Kelvin. Further part of ore left unreduced. Further reduction of part of ore यहाँ मिस हुआ है। Reduction of part of ore left unreduced in upper part of furnace also occurs in middle part above 1073। तो यहाँ पे बच्चे देखें, जो अनरिड्यूस्ड ओर है, जो अपर पार्ट में रिड्यूस नहीं हो पाई, वो रिड्यूस हो जाएगी एट 1073 केल्विन इनटू आयरन प्लस कार्बन। तो जोन ऑफ रिडक्शन बच्चे 573 केल्विन से लेके कहां तक आ गया, 1073 केल्विन। एक बार फिर इसको रिपीट करना चाहूंगा। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ फर्नेस, हियर टेम्परेचर इज बिटवीन 500 टू 900 केल्विन, हियर द ओर्स आर रिड्यूस्ड टू आयरन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये बच्चे देखो, आयरन में रिड्यूस किया, कुछ हिस्सा फेरस ऑक्साइड में भी किया। इन द मिडिल पार्ट ऑफ फर्नेस where the temperature is in the range of 900 to 1500 Kelvin, the reduction of ferrous oxide formed above occurs to iron by carbon at a temperature above 1073 Kelvin, है ना। फेरस ऑक्साइड लिखना था बच्चे, यहाँ पे गलती से लिख दिया है, ये फेरस ऑक्साइड जो बना, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा जो अनरिड्यूस्ड Fe2O3 है, अनरिड्यूस्ड, ये रिड्यूस नहीं हो पाया, मैक्सिमम पार्ट इसमें रिड्यूस हो जाएगा 573 टू 673 केल्विन, 500 900 केल्विन, इस जोन में रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कुछ हिस्सा फिर भी अगर बच जाता है Fe2O3 का, तो 1073 केल्विन जहां टेम्परेचर है फर्नेस के अंदर, वहां पे ये रिड्यूस हो जाएगा। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे बच्चे,
ये देखें फर्नेस की डायग्राम को दिखा के, ये है फर्नेस की डायग्राम। जैसे जैसे ये आप पेपर में तो छोटा सा फर्नेस, इट इज अ टॉल सिलेंड्रिकल फर्नेस, इस चीज को अपने दिमाग में रखें बच्चे। जैसे जैसे गैसेस, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर जैसे जैसे गैसेस ऊपर को राइज करें टेम्परेचर फॉल करेगा। डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर यहाँ दिखाए हुए हैं बच्चे। ये जोन है वो 573, 500 टू 900, 950 केल्विन। यहाँ पे बच्चे क्या हुआ, आयरन ऑक्साइड रिड्यूस टू आयरन, जो मैं बता रहा था, जोन ऑफ रिडक्शन जिसको हमने कहा, दिस इज जोन ऑफ रिडक्शन। ये है बच्चे जोन ऑफ रिडक्शन। हियर मोस्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड गेट रिड्यूस टू आयरन। अगर थोड़ा बहुत बच गया है तो थोड़ा नीचे यहाँ टेम्परेचर 1073 केल्विन है, वहां पे वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस किसने किया बच्चे, आपने देख लिया। द रिडक्शन हैज बीन डन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज कोक। कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऊपर को राइज कर रही है, एज वेल एज कोक ने रिड्यूस किया एट 1073 केल्विन, और जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है उसने 500 टू 900 केल्विन के जोन। आगे बच्चे आता है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। हमने बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड किया हुआ है, ये याद रखें। In the middle part of furnace, where temperature is around 123 Kelvin, 1123 Kelvin, the limestone decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड्स विद, यहाँ पे भी थोड़ी गलती हुई है हमसे, ये बच्चे सिलिका है, SiO, सिलिका SiO2 से कंबाइन करेगा, प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी इन द आयरन SiO2, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट हमने ऐड किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करेगा सिलिका से, प्रेजेंट इन द ओर एज इम्प्योरिटी टू फॉर्म स्लैग SiSiO3 स्लैग। उसके बाद बच्चे आता है जोन ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मेल्टिंग, जोन ऑफ फ्यूजन मीन मेल्टिंग। This is the lower part of furnace where temperature is in the range of 1423 to 1673 Kelvin. In this region, spongy iron falling downwards. जो अपर पार्ट में आयरन बना फेरिक ऑक्साइड से, अपर पार्ट में जब वो नीचे को गिरा, तो इस जोन में आके जहां पे टेम्परेचर 1423 से लेके 1673 केल्विन के रेंज में है, इस जोन में आके बच्चे वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया एंड डिजॉल्व कार्बन सल्फर फास्फोरस सिलिकॉन मैंगनीज एटसेट्रा। और अपने में क्योंकि बच्चे वहां पे कार्बन तो हम कोक तो साथ में फेंक ही रहे हैं, ये एज इम्प्योरिटी होंगी थोड़ी थोड़ी बीच में, तो इनको डिजॉल्व कर लेगा एंड फॉर्म्स लोअर लेयर एट द बॉटम ऑफ फर्नेस, लोअर लेयर बनाएगा बॉटम ऑफ फर्नेस। साथ साथ में यहाँ पे ये स्लैग बना, ये स्लैग, स्लैग फॉर्म अब आल्सो मेल्ट्स इन दिस रीजन, वो भी इसी रीजन में मेल्ट करेगा। द molten slag being lighter forms upper layer. Two liquids, that is molten iron and slag, are moved periodically from tapping hole. The iron thus obtained from furnace contains about 4% carbon and many impurities in smaller amount. This is called pig iron. ठीक है बच्चे, ये बच्चे देखें, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको डायग्राम फिर से वापस, इस डायग्राम को देखें। ये बच्चे देखें, ये दो लेयर बनी हुई है, इफ यू सी इट, ये बच्चे दो लेयर बनी है, एक ये लेयर है, एक ये है मॉल्टन स्लैग यहाँ से निकल रहा है, और ये निकल रहा है मॉल्टन आयरन। मैंने कहा ना कि जो स्लैग है दैट इज लाइटर देन द मॉल्टन आयरन, मॉल्टन आयरन नीचे बैठेगा, इट फॉर्म लोअर लेयर, स्लैग फॉर्म अपर लेयर। तो टैपिंग होल दोनों के लिए हमने रखे हैं, एक से निकल जाएगा बाहर स्लैग, एक से निकल जाएगा आयरन। ठीक है बच्चे, देन वी हैव, हमने क्या कहा कि द आयरन सो obtained is called as pig iron. Cast iron is different. Cast iron is different from pig iron and is obtained by melting pig iron with scrap iron, SCRAP, scrap iron,
and coke using hot air blast. It has 3% carbon content and is hard and ठीक है बच्चे। तो जो हमें यहाँ पे मिला दैट इज पिग आयरन। जो स्क्रैप आयरन है, जो आप जो हमारे इधर अनयूज्ड आयरन हमारे घरों में रस्टिंग या कोई आयरन का कोई कंटेनर है खराब हो गया है, हम उसको फेंक देते हैं। तो कई बार जो वो आयरन को कलेक्ट करने वाले जो गरीब लोग हैं, वो रिक्शा लेके चले होते हैं, वो घरों से उठा के ले जाते हैं। उस स्क्रैप आयरन के साथ मिक्स करके पिग आयरन को, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कोक यूजिंग हॉट एयर एंड ब्लास्ट वी ऑब्टेन द कॉस्ट। क्या ऑब्टेन करते बच्चे? कॉस्ट। नेक्स्ट वी हैव प्रेपरेशन ऑफ रॉट आयरन। It is the purest form of iron. It contains 0.2 to 0.5% carbon beside traces of phosphorus, silicon in the form of slag. Carbon in wrought iron is present partly as graphite and partly as cementite, Fe3C. It is manufactured by heating cast iron on hearth of reverberatory furnace, pudding furnace, lined inside with hematite. जिसके अंदर हमने हेमेटाइट की लाइनिंग दी होती है। The hematite oxidizes carbon to carbon monoxide. जैसे फर्नेस है उसके अंदर हमने हेमेटाइट की लाइनिंग दी है, इसके अंदर हमने डाला बच्चे कौन सा आयरन? पिग आयरन, ठीक है ना। जो Fe2O3 की लाइनिंग है, Fe2O3 की, उस ये किसके साथ ऐड कर जाती है? कार्बन प्रेजेंट इन पिग आयरन। हमारा काम क्या है? कार्बन कंटेंट को कम करना। रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, पिग आयरन में कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। उस कार्बन कंटेंट को कम करने के लिए हमने किसका सहारा लिया बच्चे? उसी ओर का जिससे हमने पिग आयरन को ऑब्टेन किया, दैट इज Fe2O3, ठीक है ना। तो जो हमारा Fe2O3 हेमेटाइट ओर जिसकी हमने लाइनिंग दिया है, that oxidizes carbon to carbon monoxide, sulfur to sulfur dioxide, silicon to silicon dioxide, phosphor phosphate dioxide, मैंगनीज टू मैंगनीज। ये सारी इंप्योरिटीज बच्चे रहती हैं हमारे किसमें? इम्प्योर आयरन में। हमने ऊपर बताया आपको कंटेन दीज इम्प्योरिटीज। तो इन सभी को बच्चे क्या कर देता? ऑक्सीडाइज, है ना। Fe2O3 प्लस कार्बन, Fe2O3 कहां से आ रहा है? लाइनिंग ऑफ द फर्नेस। आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन प्लस मैंगनीज ऑक्साइड, carbon and sulfur, carbon monoxide, sulfur dioxide escape out, whereas manganese oxide and silica combine to form slag. Manganese oxide, यहाँ से वो मिस हो गया हमसे, manganese oxide and silica form slag. Similarly, P4O10, ये P4O10 भी बना ना यहाँ पे बच्चे, देखें कहाँ गया ये, लिखा यहाँ पे, इधर शायद बनाया नहीं हमने। P4O10 फास्फोरस की ऑक्सीडेशन से इट आल्सो फॉर्म स्लैग विद Fe2O3। ये Fe2O3 से ही कंबाइन करके क्या बना देगा बच्चे? स्लैग। समटाइम लाइमस्टोन इज आल्सो एडेड टू रिमूव सिलिका एज स्लैग। सिलिका की इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए समटाइम हम लाइमस्टोन एडिशनल ऐड करते हैं, अदरवाइज मैंगनीज ऑक्साइड जो पड़ना बीच में वही इसको रिमूव कर देगा। रॉट आयरन thus prepared is freed from slag by passing through rollers। रोलर्स में से पास करके हम स्लैग को क्या कर देंगे बच्चे? रिमूव कर देंगे और ऑब्टेन करेंगे किसको? रॉट आयरन। Then we have production of steel. It is manufactured from pig iron or cast iron as follows. The carbon content is decreased from 3 to 4% to 3 to 4% होता है उसमें to 0.0 to 1.5%. The impurities of sulfur, phosphorus, silicon, manganese present in pig iron are either removed as volatile oxide by oxidation or through slag formation. Allying metals are added to get steel of desired properties: chromium, nickel, manganese. Various methods used are Bessemer process, Thomas process, Simon's process, open hearth process, Simon's electric arc furnace process. Our best method is basic oxygen process, BOP, basic oxygen process. थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। In this process, furnace is charged with molten pig iron. Furnace में हम क्या डाल देंगे बच्चे? Molten pig iron, lime and pure oxygen is blown over the surface of metal at great speed. The oxygen penetrates through the metal and oxidizes the impurities rapidly. स्पीड से पास करना, स्पीड से क्यों? कि impurities ही ऑक्सीडाइज, हमारा आयरन कहीं ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ताकि फटाफट
ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीजन बाहर निकल जाए और इम्प्यूरिटीज को भी, जो वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज उनको भी अपने साथ ले जाए। तो ऑक्सीडाइज कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। आयरन भी इसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चे, देखें FeO वो क्या बना रहा है, FeO जो बन रहा है उसको सिलिकॉन, सिलिकॉन भी इम्प्यूरिटी है, वो वापस कन्वर्ट कर रहा है किसमें, आयरन में। FeO मैंगनीज, आयरन प्लस मैंगनीज ऑक्साइड, FeO सिलिका, FeSiO3, मैंगनीज प्लस सिलिका। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिक देखें, तो आपका ऑक्सीजन है जिसको हमने ब्लो किया थ्रू द मॉल्टन पिग आयरन, फास्ट मूवमेंट दिया, उसने थोड़ा बहुत आयरन भी ऑक्सीडाइज कर दिया FeO। इस FeO ने क्या किया, जो इम्प्यूरिटीज हैं उनको रिमूव करने में हेल्प किया, कोई खतरा नहीं है। इट ऑक्सीडाइज सिलिकॉन, इट ऑक्सीडाइज मैंगनीज, और अगर थोड़ा बहुत बच भी गया तो वो किससे कंबाइन कर गया बच्चे, सिलिका से टू फॉर्म स्लैग, उसने क्या बना दिया, स्लैग। इसी तरह से फास्फोरस भी ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन जो हमने पास की। तो ऑल दीज रिएक्शंस अकर in this basic oxygen process. All the impurities are removed, then required allying elements and carbon are added. जब impurities remove हो गई, फिर आपको जिस टाइप की स्टील चाहिए उसके हिसाब से आप उसमें कार्बन ऐड करते बच्चे, इस प्रोसेस में सारा कार्बन रिमूव हो जाएगा। आपने फिर बाद में एडिशनल कार्बन ऐड करना एज पर डिजायरेबिलिटी, आपको किस टाइप की स्टील चाहिए, हार्ड स्टील चाहिए, माइल्ड चाहिए, या मीडियम स्टील चाहिए, उसके हिसाब से आप कार्बन कंटेंट उसमें ऐड करेंगे और अलाइंग मेटल आप ऐड करेंगे। माइल्ड स्टील में 0.1 टू 0.225% कार्बन, बिल्कुल कम कार्बन था माइल्ड स्टील। माइल्ड मतलब जो आसानी से बेंड हो जाए। मीडियम स्टील में 0.2 टू 0.5%, और हार्ड स्टील में 0.5 टू 1.5%। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ अलाइंग मेटल। ये हमने इसकी टाइप्स भी दी है बच्चे फॉर योर जनरल नॉलेज। वी हैव स्टेनलेस स्टील, वी हैव निकल स्टील, क्रोम स्टील, सिलिकॉन स्टील, मैंगनीज स्टील, एल्निको स्टील। एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन तो रहना ही रहना। जैसे निकल स्टील है 96 टू 98% इसमें बच्चे निकल है, सॉरी आयरन है, और 2 टू 4% क्या है, निकल। तो हर एक स्टील की अपनी अपनी बच्चे खासियत है। एवरी स्टील हैज इट्स ओन यूटिलिटी। टंगस्टन स्टील देखें बच्चे, आयरन 94%, टंगस्टन 5%। हाई स्पीड कटिंग टूल्स बनाने के लिए, कटिंग टूल्स हम टंगस्टन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। रॉक क्रशर बनाने के लिए, रॉक क्रशर, बर्गलर बर्गलर प्रूफ सेफ्स, रेल ट्रैक्स बनाने के लिए हम जिस स्टील का इस्तेमाल करते हो ये है मैंगनीज स्टील। हार्ड स्टील है, मतलब बहुत, आप कह सकते हैं इसको कि सख्त, जिसको आप कह सकते हो आसानी से टूटे ना, आसानी से ब्रेक ना हो। रॉक क्रशर चट्टानों को तोड़ने के लिए, है ना। तो मैंगनीज स्टील, हर एक स्टील की अपनी अपनी बच्चे क्या है, इंपॉर्टेंस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयरन। थैंक यू, थैंक यू।